بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ، پردہ نشین، سوختہ عشق و اشتیاق، شیفتہ قرب و اختراق تھی۔ آپ شب و روز عبادت میں رہتی تھی۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا، اس پر اسباب لاد کر چلی، راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ عالم، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لاد کر مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ بصریہ قریب مکہ پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال بھی مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے، مستحکم مکان ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تاہ و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام دیدار کی آرزو کی، ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ آپ سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کس طرح پایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کل موجودات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تم نے اللہ کو کس طرح جانا؟ آپ نے فرمایا بے چون چراں اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گی؟ اس جہان سے آئی ہوں اور اسی جہان میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت۔ آپ نے فرمایا محبت ازل سے آئی اور ابد سے ہو کر گزری۔ محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخر کار محبت وصل اللہ ہوئی اور وہاں سے ارشاد ہوا اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہو، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اعضاء سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو۔ جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعضاء کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا فی اللہ کا ہے۔ اے مخاطب خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے فرمایا صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے، اور اگر ہم خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں تو دوسری توبہ کی محتاجگی باقی رہ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ثمرہ معرفت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور فرمایا کہ پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے۔ جب اللہ اس کو دل دے دے تو فوراً اسے اللہ کے سپرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں حفاظت سے رہے اور اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے
रखते थे कि जो कोई किसी के दरवाजे को खटखटाता है कभी न कभी दरवाजा उस पर कुशादा हो ही जाता है। एक बार हजरत राबिया बसिया भी वहाँ मौजूद थी। ये सुनकर फरमाने लगी, ये कब तक कहोगे कि खुलेगा, पहले ये बताओ कि बंद कब है जो आइंदा खुलेगा। ये सुनकर हजरत सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी दानाई की तारीफ की और अपनी नादानी पर अफसोस किया। एक बार आपने एक शख्स को हाय गम कहते देखा। आपने फरमाया हाय गम न कहे बल्कि हाय बेगमी पुकार, क्योंकि गम का खासा है कि जिसके पास ये होता है उससे सांस तक तो ली नहीं जाती, बात करना तो अमर महाल है। एक शख्स को आपने सर पर पट्टी बांधे देखा। उससे पूछा कि पट्टी तूने क्यों बांधी है? उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। आपने पूछा तेरी उम्र क्या होगी? उसने कहा कि 30 वर्ष का हूँ। आपने पूछा कि इतने जमाने तक तू बीमार रहा या तंदुरुस्त? उसने कहा कि तंदुरुस्त रहा। आपने फरमाया अफसोस है 30 वर्ष तक तू तंदुरुस्त रहा और उसके शुक्र में कभी तूने पट्टी न बांधी। एक दिन बीमारी में शिकायत की पट्टी बांधे हुए है। आप गोशा नशीन थी और बहार की फसल थी। आपकी खादमा ने कहा जरा बाहर तशरीफ लाइए, साना की सनद मुलाजा फरमाइए कि उसने क्या क्या सनाई की है। आपने फरमाया कि तू भी गोशा नशीनी इख्तियार कर ताकि खुद साने तुझे दिखाई दे। मेरा काम साने का देखना है, मैं सनद देख कर क्या करूँगी। एक बार आपने 7 शुबाना रोजा रखा और शब को मुतलक इस्तराहत न फरमाई। 8वें दिन भूख ने गलबा किया और नफ्स फरियाद करके कहने लगा कब तक आप मुझको रंज और तकलीफ में रखेंगी। उसी वक्त एक शख्स आया और एक प्याला जिसमें कोई चीज खाने की थी आपको दिया। आपने लेकर रख लिया और चिराग जलाने को उठी। इतने में बिल्ली आई और उसने प्याले को उल्ट दिया। आपने ख्याल किया कि पानी से रोजा खोल लूंगी। अब खोरे में पानी भरकर लाई तो चिराग गुल हो गया। आपने पानी पीने का इरादा किया। अब खोरा हाथ से गिरकर टूट गया। आपने एक आह भरकर रब्बुल इज्जत में कहा या अल्लाह ये क्या है जो तू मेरे साथ करता है। गैबी से आवाज सुनाई दी कि ऐ राबिया अगर तुम नेमत दुनिया की तालिब हो हम देने को मौजूद हैं, लेकिन अपना गम तुम्हारे दिल से निकाल देंगे, इसलिए कि हमारा गम और नेमत दुनिया दोनों का गुजर एक दिल में मुहाल है। ऐ राबिया तुम्हारा भी एक मुराद है और हमारा भी एक मुराद है, लेकिन हमारी और तुम्हारी दोनों मुरादें जमा नहीं हो सकती। ये निदा सुनकर आपने अपने दिल को दुनिया से जुदा किया और उम्मीद को कोताह किया। इस तरह जैसे कोई मरने वाला नज़ा के वक्त उम्मीद को तर्क करता है और दिल को दुनिया की बातों से अलग करता है, और इस कदर दुनिया से अलग हो गई कि हर सुबह को दुआ फरमाती ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी तरफ मशगूल कर ले ताकि अहले दुनिया मुझे और किसी काम में मशगूल न कर सके। आप हमेशा रोया करती थी। लोगों ने कहा बज़ाहिर आपको कोई बीमारी मालूम नहीं होती, फिर क्या सबब है जो आप इस तरह रोया करती हैं? आपने फरमाया तुम लोगों को मालूम नहीं, मेरे सीने के अंदर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई तबीब नहीं कर सकता और इस मर्द की दवा विसाल इलाही है। इसी वजह से मैं रोती हूँ और अपनी सूरत दर्दमंदों की मिसल बनाए रखती हूँ। शायद क़यामत में इसी जरिए से मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। चंद बुजुर्ग आपके पास आए। आपने उनसे कहा कि तुम लोग बयान करो कि अल्लाह की पुरस्तशिश क्यों करते हो। एक ने कहा कि हम दोज़ख के तबकों से डरते हैं और उसी पर से क़यामत में गुजरना होगा। उसके खौफ की वजह से हम अल्लाह की पुरस्तशिश करते हैं ताकि दोज़ख से महफूज रहें। दूसरे ने कहा कि हम वहशत की आरज़ू की वजह से अल्लाह की पुरस्तश करते हैं। आपने फरमाया कि वो बंदा बुरा है जो अल्लाह की पुरस्तश खौफ दोज़ख या उम्मीद जन्नत की वजह से करे। उन बुजुर्गों ने कहा कि आपको अल्लाह से उम्मीद या खौफ नहीं है। आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत फर्ज ऐन है। फिर फरमाया अगर अल्लाह वहशत और दोज़ख न पैदा करता तो क्या उसके बंदे उसकी इबादत न करते? अल्लाह की पुरस्तश बेवास्ता करना चाहिए। लोगों ने आपकी आजमाइश की गर्ज से कहा अल्लाह ने फजाइल मर्दों को बहुत दिए हैं और मर्दों में अंबिया भी भेजे हैं, कभी किसी औरत को मर्तबा नबूवत नहीं मिला, आपको रुतबा वलायत नहीं मिल सकता, फिर बनावट करने से क्या फायदा? आपने कहा तुम्हारा कौल दुरुस्त है, लेकिन ये बताओ कि दुनिया में आज तक किसी औरत ने भी सिवाय मर्दों के खुदाई का दावा किया है या कोई औरत भी मुखन्नस हुई है? हालांकि हजारों मर्द मुखन्नस हुए हैं। एक बार आप अलील हुई। लोगों ने अलालत का सबब पूछा। आपने कहा मेरे दिल को वहशत की तरफ तवज्जो हुई तो अल्लाह ताला मुझ पर खफा हुआ और उसका अताब मेरे अलालत का बहस बना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के हाथ थे और सद की बाबत आपस में तज़किरा हो रहा था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो शख्स अपने
दावे में सादिक नहीं है जिसे उसका मालिक मारे और वो सब्र न करे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, इस कौल से खुदी की बू आती है। फिर हजरत शफीक बल्खी ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसे उसका मालिक मारे और वो शुक्र न करे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, उससे बेहतर तारीफ सादिक की होनी चाहिए। फिर हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसे उसका मालिक मारे और वो उससे लिज्जत हासिल न करे। हजरत राबिया बसरिया ने फिर यही फरमाया, उससे बेहतर तारीफ सादिक की होनी चाहिए। इन तीनों बुजुर्गों ने कहा कि हम लोग अपने अपने नजदीक तारीफ कर चुके, अब आप भी कुछ फरमाएं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसको अपने मौला का दीदार हासिल हो और वो अपने जख्म की तकलीफ को भूल न जाए। ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम अर्द गुजार है कि कोई शख्स मुशाहिदा इलाही में अपने जख्म की तकलीफ को भूल जाए तो हरगिज़ ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि मिस्र की औरतों ने जमाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काट डाली थी और उनको उसकी तकलीफ जरा भी मालूम न हुई। शयूख बसरा में से एक बुजुर्ग हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ लाए और बैठकर मुजम्मत दुनिया करने लगे। हजरत राबिया बसरिया ने कहा, मालूम हुआ कि तुम्हें दुनिया से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया की मोहब्बत न होती तो हरगिज़ उसका जिक्र न करते। कहता है कि जो शख्स जिस चीज को दोस्त रखता है उसका जिक्र किया करता है। अब शाम से इबादत इलाही को खड़ी होती और सुबह कर देती थी। फरमाया, हम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करें, उसने हमें इबादत करने की तौफीक दी। फिर फरमाया, उसके शुक्र में कल रोजा रखूंगी। आप मनाजात में कहती थी कि अगर क़यामत के दिन मुझे दोज़ख में भेजेगा तो मैं तेरा ऐसा भेद जाहिर करूंगी जिसकी वजह से दोज़ख मुझसे 1000 बरस की राह पर भाग जाएगी। और फरमाती, तूने दुनिया में जो हिस्सा मेरे लिए मुकर्रर किया है अपने दुश्मनों को दे दे, और जो हिस्सा उक़बा में मेरे लिए रखा है वो अपने दोस्तों में बांट दे, क्योंकि मेरे लिए तू ही काफी है। और फरमाया, मैं दोज़ख के खौफ से तेरी इबादत करूं तो मुझे दोज़ख में जला, और अगर जन्नत की आरज़ू की वजह से इबादत करूं तो जन्नत मुझ पर हराम कर, और अगर तुझको तुझसे चाहूं तो अपना जमाल मुझे नसीब कर। और फरमाया, अल्लाह अगर मुझे दोज़ख में भेजेगा मैं फरियाद करूंगी, मैंने तुझे दोस्त रखा, दोस्त दोस्त के साथ ये मामला नहीं करते। गैब से आवाज आई, आए राबिया, तू हमसे बदगुमान न हो, हम तुझे अपने दोस्तों के कुर्ब में जगह देंगे ताकि तू हमसे बात कर सके। और फरमाया, अल्लाह मेरा काम और मेरी आरज़ू दुनिया में तेरी याद है और आखिरत में तेरा दीदार, आगे तू मालिक है जो चाहे कर। एक शब को इबादत करते वक्त आपने फरमाया, ए अल्लाह, या मेरे दिल को हाजिर कर या मेरी बेदिली की इबादत को कबूल कर ले। जब आपकी वफात का जमाना करीब हुआ, जो मशाइख आपके करीब थे उनसे आपने फरमाया, तुम लोग उठ जाओ और फरिश्तों के वास्ते जगह खाली कर दो। वो सब बाहर चले आए और दरवाजा बंद कर दिया। एक आवाज सब लोगों ने सुनी, वो आवाज ये थी, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर। उसके बाद देर तक कोई आवाज न आई। लोग अंदर गए, देखा कि आपका विसाल हक हो चुका है। आपने इस दुनिया बेबका से कुछ फरमाया। किसी ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा मुनकिर नकीर से क्या मामला हुआ। आपने जवाब दिया। जब मुनकिर नकीर आए और मुझसे उन्होंने पूछा कि तेरा रब कौन है, मैंने कहा कि पलट जाओ, अल्लाह से कहो, जब तूने एक खातून औरत को बावजूद उसके कि तुझे तमाम मखलूक का ख्याल था कभी फरामोश न किया, फिर वो किस तरह तुझे भूल जाती, हालांकि दुनिया में भी उसे तेरे सिवा किसी का इलाका न था, तो क्यों फरिश्तों के जरिए उससे सवाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें हों आप पर, सितारों की तादाद बकदर रेत के जर्रों के बराबर, पानी के कतरों के बराबर और दरख्तों के पत्तों के बराबर। और इन बहनों पर आप रहमतुल्लाह अलैहा की राह इख्तियार करें और सलाम हो आप पर मुसलमान बहनों और भाइयों की तरफ से, क़यामत तक आने वालों की तरफ से। आमीन आमीन। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? बेशक अल्लाह के इश्क की शान ही निराली है। ज़ाहे नसीब कि जिसे ये अल्लाह का हकीकी इश्क नसीब हो जाए, यकीनन वो दुनिया में ही जन्नत का सुकून हासिल करता है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी आज की हमारी ख्वातीन के लिए मशाल राह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।